Hello friends, welcome back to the channel, and today's video gonna be on support and resistance, guys. So what is support and resistance, guys, in the stock market? Supposedly there is a chart in front of us of PVR, guys. तो मैंने यहाँ पे बनाया है कुछ लाइंस. ये रहा जुलाई 17th 2017 का ये चार्ट है, गाइस. यहाँ से मैंने लिया है. तो इफ यू सी ओवर हियर, गाइस, these lines represent a support or resistance level, guys. So here, if you see this line of 1333 and 1443 and 1249, guys. So this is a support. सपोर्ट बोले तो जहाँ पे नीचे आके जो सपोर्ट ले रहा है, where the buyers are interested in buying this stock, guys. So supposedly a person is buying over here, guys, so it will go up and he is going to sell over here, guys. So all these levels are going to be a level of value, guys. So here abhi person A has bought over here and is planning to sell over here, and B is going to buy over here, guys. तो यहाँ पे कौन प्रॉफिटेबल हुआ? It is person A, undoubtedly, because B has not seen this support which is acting as a resistance over here. Support और resistance ये अदल बदल करते हैं, guys. So price जब ऊपर support level के रहता है तो it will act as a support, और जब वो line के नीचे जो रहता है price, so it will act as a resistance, guys. These are nothing but levels of value, guys. So keep this in mind always. These are levels of value. Support and resistance is nothing but a level of value, guys, and the zones where are people interested in buying or selling, guys. तो यहाँ पे मैं एक level देखूँ 1333, right? So it is a whole number of 1340. That is called a psychological level, guys. So here interesting part is A has bought over here and B has bought over here, and A has sold over here, so he's making profit, and B is going to lose money over here, guys. And if you see, he's waiting for a level of 140, guys. 140 पे इसका ये हुआ, then even he is going to be profitable. But from here, you see an interesting thing. It is going to fall from here, guys. So this is also a minor level, guys. These are major levels and minor levels, guys. So I'll draw a line over here. So this has become a value point, and if you see here, the levels are respecting it minorly. This will, I will not call this as a major level, because major level is this and this three levels, guys. So when the price is below this level, so this will act as a resistance, and more sellers are over here, sitting over here to short this market, guys. तो जैसे ये नीचे जाएगा, यहाँ पे बाइंग प्रेशर आया है. दिस पिन बार इफ यू सी, गाइस, दिस पिन बार, इसको बोलते हैं हैमर. अगर मैं आपको ये बोल दूं, see, if you see over here and you haven't seen any price over there, so this will be a buying pressure, guys. जितनी बड़ी डंडी होती है तो उतना बड़ा बाइंग प्रेशर रहता है, गाइस. तो दिस इज, ये धोखेदार डंडी है, बीइंग डिस्पाइट अ सपोर्ट लेवल, और यहाँ से प्राइस नीचे गया है, गाइस. But eventually the prices come back up. So what this is says, that people are more interested in buying over here, guys. But even this has acted as a support. But this support has been broken, so it has bent down, guys. तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे देखो, गाइस, यहाँ पे कभी ना कहीं ये सपोर्ट लेगा ही लेगा, गाइस. सो हियर इफ यू सी, और ये अगर दो पॉइंट में छोड़ दूं बस, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ चैनल, गाइस. क्या बोलेंगे इसको? इसको चैनल बोलेंगे. दो प्राइस के बीच, दो लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक लाइन है, और उसके बीच में प्राइस ट्रेड कर रहा है, सो दिस विल बिकम अ चैनल, गाइस. तो चैनल बन जाएगा ये. एंड इफ यू सी ओवर हियर, सपोर्ट बोले तो जहाँ पे सपोर्ट लेता है मार्केट, जहाँ पे सपोर्ट लेता है उसको बोलते हैं
level of support, guys, and resistance is price is resisting to go above this line, guys. So this will called as what? As resistance. So over here interesting part is uh, अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे ऑलरेडी लाइन मेरा है एंड आई एम एंटिसिपेटिंग दैट आई विल शॉर्ट द मार्केट ओवर हियर, गाइज. इफ दिस सपोर्ट्स ब्रेक द मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन. आई न्यू दैट एंड पीपल आर सिटिंग ओवर हियर. ट्रेडर आप जब भी बनोगे तब आप सामने वाले के दिमाग को पढ़ोगे. अ फेलो ट्रेडर who is also trading is also a participant of the market. If you read his mind then trading आपके लिए बहुत easy हो जाएगा, guys. So now, so this will become a support, sorry, this will become a support and this will become a resistance. Then the price when it comes down below this, अगर ये support को नीचे तोड़ के आता है, guys, so this will act as a resistance. See here, the price went down, again it tried to went up, but no, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, गाइस. दिस कैंडल आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज गोइंग डाउन, गाइस, बिकॉज यहाँ पे इतना बड़ा प्राइस रिजेक्शन, जितनी बड़ी डंडी उसको बोलते हैं प्राइस रिजेक्शन, गाइस. ये जो विक बन रही है, ये विक इज अ रिजेक्शन. दिस इज डिनोटेड एज अ रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइजेस. सो दिस इज द रीजन द प्राइजेस हैव कम डाउन एंड टेकिंग सपोर्ट ओवर हियर. हमने कब बनाया है सपोर्ट? हमने बनाया है यहाँ पे, गाइस. आई जस्ट रिमूव दिस. यहाँ पे बनाया है, यहाँ से नीचे गया, ऊपर गया, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट को तोड़ा, नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, गाइस. यहाँ पे सपोर्ट आपको कैसे मिला, गाइस? पीछे कुछ है ही नहीं आपके लिए. ये एक बार जो बन गया तो एक वैल्यू आता है, गाइस. सो दिस इज अ लेवल ऑफ वैल्यू एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज नॉट जस्ट अ लाइन, इट इज अ जोन, गाइस. ऑलवेज कीप इन माइंड, इट इज अ जोन. यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इसको भी तोड़ दिया, इसको भी तोड़ दिया, गाइस. देन it has come down, again it went up. See, this is going on and on and on like this, guys. So ये रहा है, and if you see I have drawn over here, guys. When I have drawn this, मेरे सारे लाइंस बन गए कब तक? ये जुलाई 2018 तक, guys. So if you see over here, जुलाई से लेकर के इवन अगस्त तक ये प्राइजेस को, सॉरी, ये लाइंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, गाइस. एंड दीज आर कॉल्ड ट्रेंड लाइंस. ये जो लाइन है, दीज आर कॉल्ड ट्रेंड लाइन, गाइस. सो ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो अ सपोर्ट, गाइस. सपोर्ट और रेजिस्टेंस, अ वैल्यू वेयर a market is giving respect, that will become a what? A support or resistance. This is a dynamic support, guys. In this case, this trend line is dynamic support. This is a dynamic support. And ये कैसे बना, guys? यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया and seller want to short over here. And if I show you over here, guys, यहाँ पे आप देखो, guys, इस हाई को इस हाई मैंने जोड़ा, ये एक चैनल बन गया. दिस इज व्हाट आई वाज कॉलिंग अ चैनल. चैनल डायगोनल भी होता है, असेंडिंग भी होता है, डिसेंडिंग भी होता है और हॉरिजॉन्टल होता है, गाइस. चैनल ऐसे बनता है. सो दिस इज अ चैनल, गाइस. इट इज ट्रेडिंग इन अ चैनल. तो चैनल बोले तो क्या हुआ? दो पॉइंट इसने कनेक्ट किया, एक पॉइंट और एक पॉइंट इधर, तो एक चैनल बन गया. इसको लाइन को खींच दो तो ये चैनल बन जाएगा. और इसको दो पॉइंट्स बहुत जरूरी है, गाइस. सपोर्ट चाहे किसी भी चीज के लिए रहने दो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, ये दो पॉइंट मिनिमम टू मिनिमम होने ही चाहिए, गाइस. सो इफ यू सी ओवर हियर, ये चैनल में ट्रेड कर रहा है. सो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट. मैं लिख देता हूं इधर, दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट. Support is over here, guys. This line will act as a support and this line will act as a resistance, guys. Resistance. So this is a support and this is a resistance. Resistance, support, guys. Support में क्या काम है? Buyers are moving in and pushing the price upwards. And resistance का क्या काम है? प्राइस इस लेवल को आते ही बोलेंगे हाँ बहुत हाई आ गया, अब इसको शॉर्ट करना है, तो शॉर्ट करेंगे. तो ऐसा है, गाइस. जैसे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा इसने, तो सीधे नीचे आएगा, गाइस. यू डोंट हैव एनीथिंग ओवर हियर. एंड इफ यू कैन ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर एज वेल, तो यहाँ पे भी एक लाइन बन गया.
लाइन बनते ही यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है गाइस. See how magical those levels can get. Just by a small line, you can just predict that it will take support over here. ये इसके आधार में यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है गाइस. ये लाइन तो पहले बनी नहीं थी. अगर ये लाइन नहीं बनी होती तो यहाँ आपको पता कैसे चलता कि यहाँ सपोर्ट है गाइस. तो लाइन टेक्निकल एनालिसिस ऐसे होता है गाइस. यहाँ पे एक लाइन टान दिया, यहाँ पे सपोर्ट मिल गया गाइस. एंड जस्ट लाइन पे नहीं होता है गाइस. इफ यू कीप अ आई फॉर डिटेल, इट इज अ जोन गाइस. ये जोन बन गया है. मैं जोन भी लगा के दिखाता हूँ आपको कि कैसे बनता है जोन. दिस हैज बिकम अ जोन गाइस. यहाँ पे सपोर्ट जोन बन गया है ये. सो इफ यू कैन सी, अब मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट ले लिया इसने अब तक. एंड इफ यू कैन सी ओवर हियर एज वेल, आई विल शो यू वन मोर थिंग, अ डायनामिक सपोर्ट विच विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस गाइस. तो ये काम यहाँ पे सपोर्ट का कर रहा था, जैसे इस लाइन को तोड़ा रेजिस्टेंस बन गया गाइस. सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है गाइस. देखो इस लाइन को इसने तोड़ा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया. इस लाइन को यहाँ पे इसने तोड़ा, यहाँ पे तोड़ा गाइस, एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया गाइस. सो ऐसे होता है गाइस. वन लाइन कैन, यू कैन जस्ट कीप दिस ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे. ये देखो गाइस, ये मैंने कब लाइन बनाया, ये लाइन कब बनी, जुलाई, सॉरी अगस्त 2018. ये सपोर्ट का काम कब किया, ये जो हाल ही में जो ये मार्केट क्रैश हुआ था अपना, तब हुआ था. 16 मार्च को इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया. इज इट नॉट टेकिंग अ सपोर्ट गाइस. सी इफ यू सी ओवर हियर, ये लाइन को मैं हटा दूं और ये लाइन को भी मैं हटा दूं गाइस, यू कैन सी अ क्लियर सपोर्ट. और ये लाइन जो है रेजिस्टेंस का काम कर रही है. सो इट इज इन अ चैनल. अगेन चैनल बन गया. चैनल में क्या करना है, चैनल के ऊपर, चैनल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन गया, इसके बीच में है तो ये बन गया रेजिस्टेंस, ये बन गया सपोर्ट. अगर यहाँ पे है तो ये बन गया सपोर्ट. तो इसके नीचे ये सपोर्ट लाइन के अगर नीचे आ रहा है तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस. तो ऊपर गया रेजिस्टेंस. इतना बड़ा प्राइस रिजेक्शन, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ प्राइस रिजेक्शन, एंड सपोर्ट इज नथिंग बट सपोर्टिंग दैट लेवल्स इन दैट टाइम, इन दैट पॉइंट इन टाइम गाइस. सो तो ये हुआ, नीचे यहाँ पे इसमें तोड़ा और यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया गाइस, सॉरी रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया गाइस. एंड आई एम टेलिंग यू दिस लाइन इज अ जोन गाइस. ये जोन बन जाएगा एक. यहाँ पे भी ऊपर भी एक जोन है, यहाँ पे नीचे भी एक जोन है गाइस. सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक लाइन नहीं होता, एक जोन होता है गाइस. ऑलवेज डू रिमेंबर दैट. और जैसे ही नीचे आया, यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ नहीं की थी. अब ये आधार पे हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ की. कब ड्रॉ की, दिस इज ऑन 7th अप्रैल. 7th अप्रैल के बाद ये ऊपर गया गाइस एंड नीचे आया. एंड इफ यू कैन सी ओवर हियर गाइस, इफ आई ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन, इस हाई को मैंने पकड़ा, इस हाई को मैंने जोड़ा गाइस. सो व्हाट आई हैव गॉट अ channel, sorry, I have got a trend line. Trend line is acting as a what, dynamic resistance in this case guys. Keep in mind, always support will become a resistance when the price go beyond the support, and resistance will become support when the price appears above it. Always keep in mind guys, this is a rule. ये आप ध्यान में रख लो या फिर कहीं पे लिख लो गाइस. दिस विल हैपन ऑल द टाइम. दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग नाउ. एंड जैसे ही इसको तोड़ा इसने, इट गॉट अ ब्रेकआउट. इसको बोलते हैं ब्रेकआउट गाइस. सो नेक्स्ट लेसन फॉर यू गाइस आई एम प्लानिंग टू डू इज ऑन ट्रेंड लाइंस. ट्रेंड लाइन उसके बाद में बन जाएगा आपका चैनल से वो. सो आई विल गो ड्रिल डीप इन to advanced technical analysis guys. So this is just the basic one. So this is just an example. We'll go another stock. Here if you can see, here is a channel guys. Channel मैंने draw किया already. So I'll just show you a support and resistance guys. Starting में यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे draw करूँगा एक line. एक रूल है गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, यू नीड टू सी वेयर मोस्ट ऑफ द प्राइस आर टचिंग. टच पॉइंट्स आपका बहुत जरूरी है गाइस. 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट. सो इट हैज बिकम अ सपोर्ट गाइस. सी हियर इट हैज बिकम अ रेजिस्टेंस गाइस. यहाँ पे लिया, यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे निकल के कब बनाया हम लोगों ने ये, इफ यू सी ओवर अक्टूबर 2017 गाइस. और ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस कब खाया,
22nd October. So if you can see, even after 2 years, the price is coming to test this. It is going to have a reaction, guys. Why? Because people know that this is a point of, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, this is a point of value. People always prefer to have some base. So यहाँ पे sellers को यहाँ पे base मिल गया है, guys. I will just show you if, just a second, guys. Yes. Oops, बहुत बड़ा हो गया. So this point has become a, this point is point of value for whom? For sellers. Sellers के लिए यहाँ पे value for लिख दूंगा यहाँ पे, value for sellers, guys. So this is a point of value for sellers. यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया, सब लोगों ने सेल किया. यहाँ पे कितने परसेंट का फॉल आ गया, गाइस? It is almost 16% का फॉल, guys. That is a huge money. And second time it has passed this. यहाँ पे भी एक क्या बन रहा है, यहाँ पे resistance बन रहा है, guys. When did we draw this? 29th November 2019. ये गया नीचे. यहाँ पे भी आप देखो कहीं ना कहीं तो यहाँ सपोर्ट तो बन ही रहा है, गाइस. I'll just show you now. One line over here, guys. यहाँ पे थोड़ा माइनर सपोर्ट बोलेंगे इसको. इट इज नॉट अ मेजर सपोर्ट बट इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट. व्हाई? बिकॉज प्राइस इज रेस्टिंग ओवर हियर, गाइस. इट इज सिंपल एज दैट. और अगर ये ट्रेंड लाइन को मैं खींच दूं, यू सी दिस मैजिक, गाइस. ये कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं तो आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा ही करेगा, गाइस. इट इज नॉट जस्ट दैट यू ट्रेडिंग फॉर वन डे एंड यू फॉरगेट दैट लाइन. You will always remember that zones, guys. So this zone has a value, so it is respecting it. This zone was becoming a support once in a while, then it became a resistance, then again became a support, guys. And ये ऊपर prices को help किया ऊपर जाने के लिए. If I just stretch this line more, you can also see a support over here, taking a support over here and moving upwards. So दूसरा example ये हो गया, and here also. Just show you one more thing. Yes, if you see over here, zoom करके बताता हूँ आपको. अरे यार, if you see over here, this was acting as a support. It breached this line. Then this was, कब बनाया हमने? ये अभी बनाया, guys. ये पहले नहीं था, ये पहले से ही था. तो आया, नीचे गया. Then again they pushed the price up. So you need to have a maximum touch points, guys. Touch point is what? This is a touch point. This is a touch point. This is a touch point, and this is a touch point. Always keep in mind, you need to have more number. The support and resistance become more stronger when you have more touch points, guys. इसका ये मतलब नहीं कि कभी ना कभी वो कभी नहीं तोड़ेगा. कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं वो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, guys. It is not only इस पे निर्भर करेगा. It has its own way of breaking and making a zone, guys. तो ये हो गया. Okay, now third example is our SRF, guys. SRF, if you can see over here, guys, I'll draw a horizontal ray. Let it be ray itself, no problem. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कब? Okay, you keep this as you're trading on this day when it is 27 October. You don't have further more information of price charts. Okay, so this is going to be your support line. Okay, how support line? यहाँ पे एक touch point, यहाँ पे एक touch point, यहाँ पे एक touch point. You will need at least minimum of 2 touch points, guys. So we have over here. So this qualifies as a level of value. Level of value, हम line खींचेंगे तो बन गया support. Okay, now one more thing I will do. I'll just draw a trend line based over here, guys. कितना टच पॉइंट मिल रहा है हमको? ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. ये बन गया हमारा. ओके, गाइस, 1 2 3 मियर टच है.
then again one more touch over here guys, so it has break this trend line, but यहाँ पे सेलर्स आए, नीचे प्राइस को पुश किया और यहाँ से ऊपर गया, जैसे इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक किया, नाउ प्राइस विल मूव अप गाइस, देखो गाइस, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ, मैं लिख देता हूँ इधर, सॉरी, डायनामिक support. So this has become a dynamic support guys, this trend line has become a dynamic support. तो ऊपर ही गया है ये, तब से ऊपर ही गया है. एंड वन मोर थिंग, इफ यू सी ओवर हियर, तो हमने कहाँ ट्रेडिंग शुरू की, 17th शायद, 17 यस, तो यहाँ पे थी. एंड विल ड्रॉ वन मोर रे ओवर हियर. सो दिस इज व्हाट, दिस वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. जैसे इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया, अगेन इट टुक सपोर्ट ओवर हियर. चाहता तो ये पॉइंट नीचे से आ सकता था, सॉरी यहाँ से नीचे भी जा सकता था, बट नहीं गया. व्हाई? बिकॉज इट हैज अ वैल्यू एंड दिस वाज सपोर्ट गाइस. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा व्हाट इज दिस, दिस वाज सपोर्ट. तो ये था सपोर्ट, सपोर्ट है, दिस लाइन वाज सपोर्ट. ये से ऊपर गया, ऊपर गया. आई विल ड्रॉ व्हाट, another trend line. This is acting as what? This is acting as a support. Support. ट्रेंड लाइन ऐसे काटना नहीं चाहिए गाइस, ऐसे एक बार काटे ठीक है, दो तीन बार नहीं कटना चाहिए. I will upload a one more video on trend lines and channels guys. So one by one we'll do all that. So अभी के लिए support and resistance है. Support we can take dynamically and what do you say, just horizontal lines draw करके कर सकते हैं. We can draw a trend line as well. Trend line जैसे जैसे भी हो guys, it is touching on you have touch points, then this is qualifying as a what, dynamic support. A trend line, how many touches we have now, 1 2. अगर एक एक टाइम पे ये ऐसे भी था गाइस, ओके ऐसे भी था, सो इट कम डाउन अगेन, इट टुक रेजिस्टेंस ओवर हियर, रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को तोड़ा इसने, सपोर्ट जाके रेजिस्टेंस बन गया. सो सपोर्ट विल बिकम रेजिस्टेंस व्हेन द प्राइस इज मूविंग वेयर, upwards. When the prices move upwards and is break the same level of that price, same level of that trend line or resistance line, it will act as a resistance guys. Okay, so this was support, price ऊपर गया, यहाँ पे support काम नहीं किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया. So what is this become now? Previous support becomes a resistance. Resistance लिया, सीधा नीचे, कुछ भी नहीं, सीधा नीचे गया गाइस. एंड यू कैन सी देयर इज नथिंग मोर. सपोर्ट, ना तो सपोर्ट है ना तो रेजिस्टेंस का काम किया है गाइस, कहीं पे कुछ नहीं था, तो ये सीधा नीचे आया गाइस. दिस इज व्हाट, दिस वाज हाल ही में जो ये फॉल हुआ था, ये वो है गाइस. सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज ओवर हियर एंड यू कैन ड्रॉ वन मोर लाइन ओवर हियर गाइस. इवन दिस विल एक्ट एज अ व्हाट, लेवल ऑफ वैल्यू. लाइन ड्रॉ करो गाइस, सिंपल रूल है, लाइन ड्रॉ करो, लाइन के नीचे है प्राइस तो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, अगर लाइन के ऊपर है इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट, सिंपल एज दैट. देन दैट सपोर्ट विल बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट until and unless it leaves that zone. देखो यहाँ पे अभी ये जोन बहुत दूर चला गया, सो ये हमारा सपोर्ट किसी काम का नहीं रहा फिलहाल के लिए. अगर यहाँ पे ये आ रहा है, सो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट अगेन. So now I have one more. So assume that you're trading over here today. What is this day? This is 21st April 20 guys. So we'll draw a what? Line over here again. अगर मैं इस लाइन को खींचूं, see guys, did you see this? ये पहले से था आपके पास, आपको बस एक लाइन ड्रॉ करनी थी, लाइन ड्रॉ किया, इधर से ही सपोर्ट. Isn't these levels are magical guys? You just need to have eye for detail and you need to read charts like this. ये हर एक चीज की एक भाषा होती है guys. If you go around the world, see now, if you go in like
somewhere from Maharashtra. If you go from Maharashtra to Tamil Nadu, क्या बात करेंगे उधर? आप उधर मराठी बात करोगे तो चलेगी नहीं, वहाँ पे आपको तमिल ही बात करना पड़ेगा, तभी आदमियों को समझ में आएगा। अगर आप तमिलनाडु से फिर आंध्र प्रदेश आ जाओगे तो वहाँ पे तमिल नहीं चलेगी, वहाँ पे तेलुगु चलेगी। सो यू नीड टू, दिस इज द, तो ऐसे ही everything has a language guys. So if you see, if you want to program a computer, so programming की language आपको जाननी बहुत ज़रूरी है guys. If not, you will not be able to do anything in that. So same thing applies in this. This is a language guys. You need to speak language which they understand. Market will not understand your English or any language or any of your mother tongue guys. So it will understand only and only their own language guys. So this is technical analysis is a language for chart reading guys. So you need to learn this in terms, if you want to become a trader or if you want to become an investor, you need to analyze things like this. So analyzing all this, इतने जो लाइन वाइन से ड्रॉ कर दिया, this is all technical analysis. So if you can see over here, if I extended this line, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट देगा ही देगा गाइस इन मियर टर्म। व्हाट इज दिस? SRF राइट? SRF यहाँ पे अभी आएगा तो पीपल विल बाई ओवर हियर। what they gonna do? They gonna buy, simple as that. There is no argument in that. Why? Because line this line holds a value guys. किस तरह की वैल्यू गाइस? यहाँ पे नीचे आया, प्राइस, sellers were failed in terms of pushing this price below this point guys. Why? Because this has become a trend line guys. ये कहीं ना कहीं कहाँ पे ना कहाँ तो सपोर्ट लिया ही होगा guys. If I can prove it to you, आपको चार्ट आगे राइट में देख के नहीं एनालाइज करना है गाइस, आपको चार्ट देख के पीछे के लेवल पे, सॉरी पीछे का देखना है गाइस। कभी भी आपको लेफ्ट साइड में देखना है। इफ यू वांट टू एनालाइज अ चार्ट, you need to always see on your left side and anticipate the movement on the right side. So always see here guys. See, one more support you got, one touch, two touch, three touch, four touch, five touches guys. So it has become a what? A major support level. This is a major support level guys. आप इस लेवल को, और कभी भी एक प्राइस यहाँ पे, इफ आई जस्ट शो यू, ओके, एक ऐसी एक लाइन बनाऊंगा। So this is a support and resistance level of value. ये जोन है गाइस, जोन में, सॉरी जोन हुआ, एंड दिस इज प्राइस, दिस कर्सर इज प्राइस। ये यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया। ये जब नीचे आता है तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। दिस वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, नाउ इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस गाइस। तो रेजिस्टेंस आया, नीचे ही जाएगा, फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक प्राइस हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस नाउ? इट विल गो अप। व्हाई? बिकॉज इट इज अ वैल्यू ओवर देयर इज सम वैल्यू। It is not that price is moving on its own direction, on its own whims and fancies guys. You need to understand this always, like always. तो यहाँ पे ये ऊपर आया, ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है गाइस। यू कैन ऑलवेज डू व्हाट यू कैन डू, ऊपर गया, देखो प्राइस अगर मार्केट अगर वीकनेस दिखा रहा है तो शॉर्ट करो, नीचे आएगा। अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है इससे, तो बाय करो, ऊपर जाएगा। सिंपल एज दैट। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जितना आप थिंग्स को सिंपल रखोगे उतना आपके लिए आसान होगा गाइज। ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सो यू जस्ट नीड टू फॉलो सिंपल रूल्स, और कुछ नहीं करना आपको। बहुत सिंपल रूल्स में समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल है गाइज, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। एंड व्हाट डू आई टेल यू, एंड वन मोर थिंग गाइज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये मिड टर्म में आप देख लेना। इफ यू कैन सी दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, see now this is also, you can call this as what, one touch, two touch. Just drag this and see the price will just move according to this, and you can just trade when the price move above this resistance or below this support. You can take positions accordingly. This is how the stock market works guys. So now another example guys, Jubilant Food. Now what I'll give you, यहाँ पे हो गया नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन और
डायनामिक सपोर्ट, यहाँ पे डायनामिक सपोर्ट का मैंने एक बहुत अच्छे से आपको बता दिया है कि यहाँ पे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया जाता है, कैसे ट्रेड प्लेस होते हैं। एंड हियर ऑल्सो आई हैव जस्ट शोन यू प्रीवियस। आपको चार्ट देखना है, जस्ट मैं रिकैप कर रहा हूँ गाइस। आपको चार्ट एनालिसिस करना है तो लेफ्ट साइड का डेटा आपको देखना पड़ेगा और राइट साइड के लिए एंटिसिपेशन होता है गाइस। इट इज नॉट दैट नो वन नोज, इवन वॉरेन बफेट डोंट नो where the stock gonna move the next day guys. He will be anticipating that यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे बाई करूंगा, और सिंपल हो जो कुछ नहीं कर सकता गाइस। अगर कल के दिन मार्केट बहुत बड़ा क्रैश आता है तो कुछ नहीं कर पाएंगे गाइस लोग। जो बिग प्लेयर जो करना है वो ही करेंगे। दिस इज हाउ इट इज गाइस। एंड पीपल दे ट्रेड फॉर वैल्यू। यहाँ पे अब देखोगे, यू वांट टू बाई ओवर हियर। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बाई करते ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, और मेरा स्टॉप लॉस हिट तो ही ऊपर होता है, ऊपर चला जाता है। सो इफ यू बाइंग ओवर हियर गाइस, the price will has to push down something. It has to fight bears guys. If the bull is trying to go up, it need to fight bears and go up. It is not that it is going to move just like that. So bears are sitting over here and bulls are trying to push the price up, trying to go along. So what they will happen is, यहाँ पे बड़े मार्केट मैनिपुलेशन, ये भी मैं आपको एक, ये पूरा मैंने बनाया है एक कोर्स that I'll be uploading on videos. You don't have to pay anything. Everything what I'm telling you is for free guys, because ये सब मुझे पता नहीं था, ये मैं खुद से मैं सीखा हूँ guys। मैं खुद से देख देख के सीख के, और मेरा बहुत सारा पैसा गया है guys स्टॉक मार्केट में, तब जाके मुझे इतना नॉलेज मिला है। ये आपके साथ ना हो, सो आई एम जस्ट टीचिंग यू guys what it is and how it is. So now लोग बोलते हैं कि आई बॉट ओवर हियर एंड द प्राइस इज गोइंग अप, but before that it touched my stop loss and I was out, I was kicked out, I was stopped out and the price moved into my direction. तो कहीं ना कहीं मैं राइट था। यस बॉस यू आर राइट, बट जो होता है वो मैनिपुलेशन की वजह से होता है, और कभी ना कहीं और ये भी होता है कि आप टाइट टाइट स्टॉप लॉस कर रहे हो, बहुत टाइट रख रहे हो। सो दैट इज वन मोर रीजन that it is happening guys. So one more Jubilant Food, I will just pull in some indicators and put a 200 EMA guys. EMA is a moving average, a simple line है guys that will show you the average price of the stock. So now if you see this, interesting guys, कुछ समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू दैट गाइस। इससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट होता है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। सो इफ यू कैन सी ओवर हियर गाइस, एक ट्रेंड लाइन बना। सी गाइस, नाउ ट्रेंड लाइन इज व्हाट अ सपोर्ट नाउ, बिकॉज द प्राइस इज अबव दिस। और ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज बोले तो ये 200 है ना, 200, तो ये 200 डंडियां जो है कैंडल, 200 कैंडल का एक एवरेज प्राइस बन के 200 पूरा पूरा प्राइस का एवरेज बना के ये लेवल आता है गाइस। सो जैसे ही लेवल आया, इट विल गोइंग टू रिएक्ट। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ वैल्यू गाइस, this is value. People are going to see this. There are many players who use moving averages. So this is one more type of support and resistance guys. So जब भी ये प्राइस इसके ऊपर है, it will act as a support, और जब भी नीचे है, it will act as a resistance. See now guys, सिंपल है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। See it is moving है ना एक्सिस, it moved up, यहाँ पे आया, प्राइस को तोड़ नहीं पाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया गाइस। तोड़ना ही है इसको। ऐसा नहीं है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने एक लाइन बना लिया और आपका एक ट्रेंड लाइन हो गया, आपका एक मूविंग एवरेज हो गया। इट डजंट मीन दैट इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक इट एनी टाइम और एनी टाइम इन फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि वो एक पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है गाइस। दिस इज मार्केट, एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। सो द प्राइस इज गोइंग डाउन, इट वेंट अप, again it went down. See now if you see over here, there is what, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है गाइस। इट इज जस्ट अ माइनर सपोर्ट, बट एक मूविंग एवरेज की वजह से ये लोग देख रहे हैं टू शॉर्ट दिस मार्केट एज सून एज इट टचेस दिस। वो टच होने से पहले ही शॉर्ट हो गया मार्केट, नीचे गया फिर ऊपर आया। देन सी हियर गाइस, प्राइस लिस्ट यहाँ से एक सीमलेस मूवमेंट आया, यहाँ पे एक थोड़ा रुकावट, फिर ऊपर गया,
यहाँ पे अगेन एक रुकावट गाइस, क्यों? बिकॉज यू हैव अ 200 मूविंग एवरेज ओवर हियर. नाउ इफ आई ऐड वन मोर मूविंग एवरेज ऑफ 100 गाइस, सॉरी EMA, और इसकी वैल्यू रखूंगा मैं 100. सो दिस हैज बिकम अगेन अ व्हाट, सी गाइस कैसे सपोर्ट लिया है गाइस, दो लाइन आ गया, कॉन्फ्लुएंस मिल गया, सपोर्ट मिला बुल्स को, एक ऊपर जाने का, एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला है गाइस, सिंपल एज दैट. अगर इसी 100 मूविंग एवरेज को मैं अगर 20 कर दूं या 50 भी कर दूं, सी दिस नाउ गाइस, things are becoming clearer now. If I'm trying my best to explain you guys. Let me know how is your experience watching this video guys. I can improve on my teaching skills and all. uh, तो प्राइस ऊपर है, इट विल एक्ट एज अ व्हाट, सपोर्ट गाइस. अगर प्राइस नीचे चला गया, इससे दो क्लोजिंग मिल गई, तो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. यस, तो सपोर्ट है, ऊपर गया, जैसे इसको टच किया गाइस, यू डोंट यू थिंक इट हैज सम वैल्यू. जैसे टच किया, ऊपर गया, ऊपर गया, जैसे इसको नीचे आया, फिर देखो फर्स्ट टाइम टच नीचे आ गया, सेकेंड टाइम फिर नीचे आ गया, ऐसे ही होता है गाइस. सी इफ यू कैन सी ओवर हियर, प्राइस को चूम के जा रहा है गाइस. इट इज जस्ट किसिंग द प्राइस एंड गोइंग अप, गोइंग डाउन, गोइंग अप, गोइंग डाउन. इट इज जस्ट रिस्पेक्टिंग दिस लेवल्स. एंड देखो ये बहुत दूर चला गया, जैसे इसके पास है फिर वापस चूमते हुए जा रहा है गाइस. इट इज नॉट लीविंग इट अपार्ट. एंड ये 20 मूविंग एवरेज है. इफ आई डू 50 गाइस, हर मूविंग एवरेज में आपको एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनेगा ही बनेगा गाइस. सी हियर, so see now it was kissing and going, now it has become a bit far. जैसे ये दूर जा रहा है, नजदीक आते ही ऊपर, फिर नजदीक आते ही ऊपर, ऊपर, नीचे, नीचे, फिर ये टच किया, इसको टच करते ही नीचे गाइस. प्राइस नीचे है, एक डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट के नीचे, तो इट विल बिकम, दैट सपोर्ट विल बिकम नाउ अ रेजिस्टेंस. And when the price move above that dynamic support or horizontal support or trend line, it will act as vice versa guys. प्राइस ऊपर है, सपोर्ट बन जाएगा, प्राइस नीचे आते ही रेजिस्टेंस बन जाएगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. होप यू guys have understood, made sense out of this video guys. And if you have, please do like this video, comment below on the section that saying how did you feel about this video and how was the teaching and learning going on guys. Please do motivate me by liking this video and subscribing to the channel guys. Hope you all earn and learn and earn and learn, or learn and earn. क्यों बोले तो कोई मार्केट कभी भी आपको सिखाए बिना घर नहीं भेजेगा गाइस. एवरी डे इट विल टीच यू समथिंग और द अदर गाइस. एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइस. होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू हैव, अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा है आपको, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, आपके फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस. So that's it for the day. See you in the next video. Next video is going to be about trend lines guys. Trend line का video next आएगा. Comment below on the section, comment section saying how did you like the video and stuff. We'll make another video very soon guys. Thank you so much for watching it. We'll see you in the next video.